तो हम आ चुके थे वेटिंग एरिया में। ठीक है, अब हमारी जो है 255 पर है। अब ये निकल रही हैं अब आराम से, हम आइसक्रीम खा रहे हैं। Side step for that. We got about 8 billion kayakers out here today. So the game is, how many can we take out? God, I wish I could do that for real. Anyway, welcome aboard, everybody. Let's get started. Now, guys, before we get going here, I do have a couple things I just need to tell you about the boat. Let me get that out of the way. First thing, life jackets. Those are right above your head. How those are arranged up there, they are pretty much all adult sizes until you get way up toward the front. There are a few children's sizes up there. The good news is we've never used those life jackets in all the years this boat's been running. Not once. Huh? No, we're not going there. And this boat has actually been in operation since 1965. So, we got an old boat on our hand, but you got a good record. So let's see if we can keep it one more day. How's that? Now guys, as we go down the river today, there are other things that can go wrong. For instance, let's say one of you guys starts to not feel as possible and get that person the help that they need. So let me know if things start going south for you. Now you can see this there is glass is bottom. one ailment though that does not qualify you for a quick ride home. And that is seasickness. If someone starts to feel seasick, all I'm going to ask you to do at that point is simply turn around and shoot it that way. Okay? In other words, please don't get sick on the glass. That's not cool. Okay. Now guys, speaking of glass, this glass you're going to be looking through today is just regular old tempered glass. Nothing fancy about that at all. It's about a ½ inch thick. It is not magnified or anything like that. And if you want to take a picture through that glass, it works quite well. But before you do, make sure the flash on your camera or your phone is off. Turn that thing off. Otherwise, you get to go home with a beautiful picture of yourself. Okay. How many of you guys have been on one of our 30-minute tours before? Anybody? A couple of them? Has anybody been on this tour? You have? Did you have music after? Oh, good, because you don't want me twice. But Anyway. we saw monkeys. You did? Yes. Oh, you put pressure on me now? Yeah, Ah, I see. Okay, well, we'll try. All right, so guys, this whole deal that we're going to do today is all about the wildlife. That is what we're going to be concerned about. And we're going to do our very best to spot as much wildlife as we possibly can. But I want to start now off look by at this. showing you a spring. And if you Wow. look underneath us, this spring is called Spring of the Stars. And it gets its name kind of in honor of all the movie stars that have made movies here over the years. Now, if you look below us, you'll notice the bottom is turning to white limestone down there. In the middle of all that white limestone, up toward the front there, you'll see a little flat gray rock. It's kind of embedded in that limestone. That marks the entrance to the spring. Believe it or not, that little rock there is about 26 feet deep. Now guys, on the whole scheme of things, this is one of the smallest springs you're going to see today. I've got a lot bigger to show you before we're done. But, still spring, just happens to be first on the list. Spring of the Stars, guys. Now guys, as we go down the river today, I have one goal. and that's फिशेस for you देखें, guys to ये have नजर आ fun. रही हैं आप I लोग? want to do whatever we can do to make that happen, okay? For that reason, I don't have a lot of rules. I hate rules, and I hate invoking them. But I do have a couple, and they're simple. अंकल तो काफ़ी बोर करेंगे, तो हमने सोचा हम ही मैदान में कूद पड़ें अपनी मादरी ज़बान उर्दू के साथ। तो मैंने कहा मैं ही कमेंट्री करके आप लोगों को बताती जाऊं और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देती जाऊं। अंकल ने बहुत अच्छी दी, मैं मजाक कर रही हूँ, बट मैंने सोचा अपना भी तो तड़का होना चाहिए ना, देसी तड़का लगाना ज़रूरी है। हाँ, तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं ना, उनके लिए मैं बता देती हूँ स्प्रिंग्स कहते किसे हैं।
स्प्रिंग ज़मीन के अंदर वाले पानी को कहते हैं, जो हमारे पिंडों में हैंड पंप नहीं लगाते थे जिसमें कुकिंग भी करते हैं, उस पानी से बच्चे नहा भी रहे होते हैं चड्डियों में, हैं। वो जो ज़मीन पे हम खुद सुराख करके एक लंबा सा सुराख करते हैं, उसमें पाइप डालते हैं, फिर उस हैंड पंप लगाते हैं, फिर उसे पानी ऊपर निकालते हैं, पीते भी हैं लोग। मतलब काफ़ी जगहों पे तो पानी अवेलेबल नहीं है, वो ज़मीन का ही पानी लगाया जाता है, स्पेशली थर वगैरह साइड पे। तो उससे कहते हैं, वो तो हम खुद करते हैं ना, पर ये नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, ये अल्लाह ताला ने ज़मीन में क्रैक्स किए होते हैं, तो वो ज़मीन के नीचे वाला जो पानी है वो ऊपर आ जाता है। ये बहुत साफ़ सुथरा पानी होता है, बट आप ना जाके वहाँ पे पीने शुरू कर देना, ये उसमें इतने ज़्यादा जानवर वगैरह हैं। वैसे मैं बता रही हूँ, क्लीनिंग प्रोसेस से गुजर के, वैसे इसको साफ़ सुथरा पानी कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इतना क्लियर है, आपको हर चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। तो इसको कहते हैं स्प्रिंग। तो सिल्वर स्प्रिंग जो है बहुत मशहूर है अपने इन वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए, और मेनली जो मैं आई थी वो मैनेटी के लिए आई थी, क्योंकि मैनेटी जो जानवर है वो सर्दियों में रिवर से ऊपर आ जाता है, क्योंकि दरिया हो जाते हैं ठंडे, उनको आदत है गर्म पानी में रहने की, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है। उन्होंने बताया था 72 फ़ारेनहाइट है, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। बट ये डिपेंड करता है वेदर पे। अब सोचे, मैं फरवरी के स्टार्ट में गए हैं हम लोग, लेकिन हमें मैनेटी बहुत मुश्किल से एक नज़र आई। वो इसकी वजह ये थी कि वो उस दिन वेदर बहुत गर्म था, तो जैसे ही वेदर गर्म होता है 5 माइल्स पे रिवर था, वो रिवर पे चली गई। बड़ी कोशिश की, बट दूसरी वाइल्ड लाइफ काफ़ी है यहाँ पे, एलिगेटर्स भी हैं यहाँ पे, आपको बहुत टर्टल्स मिलेंगे, फिशेस मिलेंगी, और जो स्पेशल सिल्वर स्प्रिंग मशहूर है वो वाइल्ड एंड मंकीज़ की वजह से मशहूर है। किसी ने टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए बीच में एक आइलैंड आता है, वहाँ पे कुछ 5-6 मंकी ला के रख दिए, तो उसने सोचा कि यहाँ पे रहेंगे, पर उन मंकीज़ को स्विमिंग भी आती थी, तो काफ़ी वो फैल चुके हैं। वो कहते हैं 500-600-700 फैल गए, तो काफ़ी कुछ है, बट हमें मैनेटी ना नज़र आई। अलबत्ता यहाँ पे हॉलीवुड की एक मूवी भी रिकॉर्ड हुई, और काफ़ी टीवी ड्रामाज शोज़ भी रिकॉर्ड हुए हैं, तो वो हमें बता रहे थे। ये आंटी देख रहे हैं ना, आंटी ने हमसे चालाकी की, ये जो कैमरे वाली आंटी है। हम एंड में थे जिस टाइम, लास्ट टाइम आप लोगों को मैं बताया ना, उन्होंने ट्रिक बताया था कि एंड में जाना अच्छे व्यूज़ के लिए, तो हमने वही किया था, हम एंड में ही गए। हम एंड में थे, ये हमसे आगे थी, तो आगे आगे कहती आप लोग पहले चले जाए, हम किसी का वेट कर रहे हैं, जैसे हमें पता नहीं है, मतलब चूना लगाना है साणु ऑलरेडी, जिनको ट्रिक पता है। हमने 1-2 दफ़ा देखा, और फिर मैंने बिलाल को देखा, बिलाल तो रुक गया, पर फिर मैंने कहा चलो दफ़ा करो, तो वो एक तरफ बैठ गए, हम भी एंड में इस तरफ बैठ गए। लेकिन मुझे इस बात की हुआ कि ये गोरे भी कम नहीं है, मतलब दूसरों को समझते हैं कि बहुत ही वो है ना, और मुझसे पता नहीं समहाउ जब चालाकी सारे कर रहे हो ना, तो मैं चुप करके आगे चली 2 जाती। people, 3. You got, Point out you the got old 4. people. The old people, yeah. You're pointing out the I old didn't want people. to say that, but now that you mentioned it. If you look over here at this little dock right there, we call that the Sea Hunt Dock. The reason we do is because every single episode of that series was actually filmed right here at Silver Spring. Every one of the underwater scenes. Give you an idea how old I am. That was the coolest thing on television when I was a kid. Very cool. Like it along the edges of the river. Sometimes you'll see one swimming along the edge, especially this time of night. But more often where you'll see them is like over here on the left. You see all that green, mushy grass all intertwined together. That's ideal for an alligator to hang out. They love them. So watch all these areas as we go down the river. If you see one hanging out in there, or just it's ahead, I don't care, whatever you see. If you see one, don't keep it to yourself. Please don't keep it to yourself. Say something so we can hear that, and that way we can stop and people can get some pictures and so forth. So let us know, and that goes for any animal that we're going to see today. Please say something when you see it. So watch along here. यहाँ पे ये बोट राइड तो है जो कि 30 मिनट्स की भी है और 1.5 आवर की भी है, बट अगर आप मुझसे पूछें तो बेस्ट एक्टिविटी जो है ना, कायाक है, अगर आप रेंट कर सकते हैं, और वो रेंटल अवेलेबल थी। मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि मेरे साथ बच्चे थे और साइड्स पे आपको एलिगेटर्स भी नज़र आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में था कि हम तो चले जाएं, लेकिन अगर बच्चे थोड़े डर की वजह से, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी देखी। अगर आपके बच्चे नहीं डरते तो गो फॉर दैट। स्मॉल बेबीज़ के साथ तो मैं नहीं कहूँगी, बट आयमा की साइज़ के बच्चे कर रहे थे, और आयमा से 1-2 साल छोटे भी
कायाकिंग और बेस्ट एक्टिविटी है। और बीच में आगे जब लंबे लंबे ट्री साइड से आ रहे थे ना, तो वहाँ पे एक शाम का टाइम था, एक तरफ से सनलाइट पड़ रही थी, तो दिल कर रहा था थोड़ी देर के लिए ना सब कुछ रुक जाए, ताकि यू कैन हेयर दैट वाटर साउंड, बर्ड्स, और बीच में जो समंदर, आई मीन इस स्प्रिंग के जो अंदर से कभी टर्टल और कभी फिशेस ठड़क ठड़क करके छलांगे लगा रही थी ना, वो फील करना चाह रहा था। ये आइलैंड था, यहाँ पे छोड़े थे इन्होंने वाइल्ड मंकीज़। बता रहे हैं यहाँ पे एरो लगा हुआ है कि इन्होंने छोड़े थे, लेकिन वो वाइल्ड मंकीज़ जो थे उनको स्विमिंग आती थी। बाजी के लगता है शागिर्द थे। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में मैंने कोई टर्टल शायद देखा है या एलिगेटर देखा था, पता नहीं रिकॉर्ड कर सकी कि नहीं कर सकी। बट आपको वाइल्ड लाइफ इतनी ज़्यादा तो हमें नज़र नहीं आई, बट जो थोड़ी बहुत नज़र आई हमने देखी। बट इतना क्लियर वाटर, इतना मतलब आप समझते हैं कोई जन्नत का टुकड़ा हो। ये मेरे ख्याल में, मैं जूम इन कर रही हूँ टर्टल्स की तरफ ही, सी। और टर्टल्स भी वो कह रहे थे 3 टाइप के हैं, जिनका नीचे से ना किसी का येलो होता है, किसी का वाइट होता है, किसी का ऑरेंज होता है, मतलब काफ़ी चीज़ें थी। अभी जो दिखा रहे हैं बोट के, ये नीचे दिखा रहे हैं पुराने किसी बोट के जगह है, टाइटैनिक है, मतलब आर्टिफिशियल, नकली टाइटैनिक भी तो होती है ना मेरी जान। तो इसी तरह इन्होंने यहाँ पे भी हर जगह टोबर मोरी में भी नकली टाइटैनिक, मतलब जो शिप डूब जाती है ना उसको वहीं रख देते हैं ताकि नज़र आए कितनी हसीन लग रही है। ये भी हमने टाइटैनिक 1 2 3 4 5 7 8 10 100 ओरिजिनल ना देखिए, ओरिजिनल मत चले जाना। लगा था ना अभी वो एक गया था, कैप्सूल बनाया था वो जो अंदर, जिसमें एक पाकिस्तानी अब्बा और बेटा था, बड़ा दुख हुआ था हमें। बट चलो थोड़ा बहुत अंकल को भी सुन लो, अंकल भी काम की बातें बता रहे हैं। ये बर्ड्स देख लो, बर्ड्स की भी बता रहे थे। बर्ड्स मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, पर इतनी कोई मैं उनकी फोटोग्राफी नहीं करती, इतनी नहीं हूँ। कोई बंदा हो तो जाए तो एलिगेटर वेलिगेटर नु कैप्चर करे ना, फायदा तो एलिगेटर दा है ना। Now we have three kinds of cooter turtles. We have red belly, yellow belly, and orange belly. We got one here, and if you look up on this wall coming up here, we got at least 2 more over there. This is a perfect day for turtles to be coming out because they love to come out and catch some sun. The sun warms up their shell, it acts like a big solar panel, and it keeps their blood nice and warm, and they only love it. So watch along the edges for more turtles. I'll bet you it ends up in the Atlantic. I've made so much progress. I know my zodiac sign was not good just Yeah, very far. Wow, they're way out there. Wow. And it's really nice and easy to paddle Yeah, coming back. until you turn around. And then it gets a little fun. Now, you've got another option if you decide that's not something you want to do, and if you have a little more time. What do you got? You see one? In a brush somewhere? Now, let's go back and visit him. I took a picture of it. I said it wrong. Oh, il était énorme. Il va le rejoindre. It's really close. You can obviously see the color that he was. That's not easy to spot outside the boat. But we're going to try to go over here and see if we can get you some pictures here. Now, as I approach this area, if you see him out in front of us, point to where he is, okay? Because I need the help here, because the reflection is bad for me, I can't tell. ये सारे परेशान क्यों हैं, क्योंकि एक मैनिटी नज़र आई थी, और मैनिटी के पीछे अगर अंकल बोट को टर्न कर रहे हैं, उन्होंने फुल कोशिश की कि किसी तरीके से हमें वो दिखा सकें। इवन साथ वाले हमारे पीछे एक बोट वाले थे, उन्होंने, आंटी ने एक दफ़ा भी मेहनत नहीं की, बट अंकल ने उनको भी फ़ोन किया और काफ़ी कोशिश की कि कहीं से थोड़ी बहुत कैप्चर हो जाए। मेरे ख्याल में मैंने की भी है, वो साइड से निकल गई ना, नज़र आई वो जो धुआं 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 धुआं। दोबारा अंकल टर्न करेंगे ताकि आप लोगों के जो पैसे हैं वो हलाल हो जाएं। ये देखें लोग कितने एक्साइटेड हो गए। और एक बीच में वापस जाते हुए भी वो शैलो पे थी, तो वो कहते मैं शैलो पे बोट नहीं लेके जा सकता उस एरिया में साइड पे। बट मेरे ख़्याल में वो सीन आपने देखा, अब मेरे ख्याल में साइड से कहीं नज़र आएगी या चली गई वो। देखो हम सारी कितनी मेहनत कर रहे हैं, एज अ टीम वर्क है। तुम लोग भी ढूंढो, कोई मिली तुम लोगों को? मुझे तो नज़र नहीं आ रही। गाने गाओ कोई, वैसे तो आज सोनिया
घर आजा सोनिया। जी अब सारा जो बोट है ना हमारी मैनेटी के पीछे पड़ गया। एक मिली थी, नजर आई थी वो पूरे तरीके से, अब हम उसको ढूंढ रहे हैं। अब होपफुली हमें नजर आ जाए। क्या आ रहा है? पीछे से एक और बोट आ रही है। Go under us right in his area. We're trying to find him again. So that's what we're doing. बट वो मेरे ख्याल में डरी हुई थी। एक थी ना बिलाल? क्या एक थी पर एक थी। पर चली गई बिलाल, इतनी मोटी चली कैसे गई बिलाल? उसको तो भागना भी नहीं आना चाहिए। We need. Sometimes these guys can get pretty goosey out here. They can get pretty avoidant. They'll avoid us like the plague. And other times they don't care. They just sit down there and let us go right over. I'm gonna go back over because he could have gone the other way. चलो अब हम घूम रहे हैं। She's joking. It's a river. Is it a shark? The shark doesn't live on the river. Como se llama? You're alligator. You're alligator. There's one way back in there, but I can't get to it. What do you see there? There's Glenn Campbell, all kinds of artists. All those, yep. Yep, that's right. I forget the list. फाइनली हम एंड पे आ चुके हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। तो ये उन्होंने कहा था ये बहुत डीप है। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा रॉक भी दिखाया था। उसने कहा था ये इसका रॉक का ही कुछ पता नहीं, कोई 50 पता नहीं कितने 5 फीट है, पता नहीं कितना नीचे जा रहा है। ठीक है जी, जिसको शौक है वो गूगल कर लें। और यहीं पे एक स्पॉट था जहाँ पे इन्होंने हॉलीवुड मूवीज़ के लिए नीचे स्टैचूज़ रखे थे। 3 स्टैचूज़ रखे थे फाइबर ग्लास के। उन्होंने कहा था जब मूवी हो गई तो उसके बाद इसको जब निकालने के लिए किया तो यहाँ के लोकल्स ने कहा कि प्लीज़ आप मत निकालें, इनको नीचे ही रहने दें, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो फिर उन्होंने के इंसिस्ट पे वो निकाले नहीं। तो वो भी एक सीन है, वो भी आगे आएगा और वो भी देख लें। और उसके साथ हम इसको व्लॉग को करते हैं ख़त्म। That's what happens when we get to the other end of this rock. The bottom drops down to 55 feet in a big hurry. This is Mammoth Springs. Now, if you're sitting on the left, I want you guys to take a look way down at the bottom toward the right. What you're going to see is a big cavern down there. You see that? That is where the water's coming from. Now, if you're sitting on the right, oh man, you should have sat on the left. 'Cause you can't see that. I'm messing with you. I'm going to turn around. Funny guy. बहुत डीप है। Made these things out of light material so they'd be easy to put down there and consequently easy to remove when they were done filming. So the question remains, why are they still there? Well, when the filming was all completed, the producer told these guys, all right, guys, we're done filming. Let's pick up our statues. Let's go home. In other words, they intended to pick them up. But when they started to pick them up, that's when it got interesting because the local people here in Ocala had an absolute fit. They said, guys, don't pick those up. Those are way too cool. Leave them down there. Let people enjoy them for years to come. And you don't need them anymore. They're just props. And they talked them into leaving. And those little guys now have been down there since 1967. My last question is, did everybody get a chance to see them at one point or another there? Yep. Nobody sitting here going, where are the statues? Right? Okay. All right, guys. Well, being that said, टिप जो है यहाँ पे फेंकते हैं ऐसे करके, अगर आपने कैप्टन को देनी है तो।
Okay, let's see ये how we जो can get पाकिस्तान में this शादियों baby में नहीं in here फेंकते बिलाल? nice and quiet. वैसे ये ले जी पैसे आ रहे हैं। क्या बाबा जी को हमें पैसे देने चाहिए ना? क्यों? इतना बोरिंग करवाया है। सुलाया तो है, सुकून तो आया है, मैं बैठी रहो अभी। जस्ट कीप सिट डाउन, कीप सिटिंग। सही था बस मतलब इतनी भी कोई आने वाली चीज़ नहीं है कि अलमास ये निकाल देना इसका। नहीं भाई ये Boy, you're telling me. चलें जी, हमारा ये हो गया। अब हम जा रहे हैं, खाना खाते हैं ऑरलैंडो चल के। ठीक है जी, बिलाल की मजदूरी। फ्रेंचियों को हमने पहचाना है। अच्छा, खाना कहाँ खाना है? बिलाल जहाँ फ्रेंच देखता है अपने रिश्तेदार समझने शुरू हो तो जाते हैं। रिश्तेदार ही हैं हमारे। हमारे रिश्तेदार हैं। बस तुम लोग क्यूबेक में 1 साल रहे हो तो तुम्हारे रिश्तेदार बन गए। Je parle français, je parle petit peu। वो तो है बट तो हम लोग फ्रेंच ही हैं ना, और क्या है? ले दादू के फ्रेंच है। वहाँ 2 साल रहे ना, 2 साल रहे थे ना 1 साल, एक साल। दादू सही। के फ्रेंच हो, सेंट लॉरेंट में वैसे ही जाली फ्रेंच हो। दादू के असल फ्रेंच है, वो तो बड़ा अप्रिशिएट किए ना, वो तो फ्रांस के फ्रेंच लोग। चलें जी, इसी के साथ बंद करें ब्लॉग को, थक गए। देख लो, प्लीज़ टेक नथिंग बट पिक्चर्स, लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स। इसका मतलब है जो गंद लाए वो अपना साथ लेके जाओ। समझ आइए, ज़्यादा शो मारने की ज़रूरत नहीं है। और आगे लिख दिया थैंक यू, डोंट कम अगेन। उन्होंने लिखा है कम अगेन, हमने कह दिया डोंट कम। पिकनिक करनी चाहिए बिलाल यहाँ पे।